don't know what's wrong, but something is wrong, and I have no idea what's wrong. You are trying to just pull attention, या लोग ऐसे लेंगे कि oh it's a stigma, this girl has something wrong with this particular thing is a very big stigma. आजकल publicity of mental health ज़्यादा कर रहे हैं instead of awareness of mental health. Hi guys, I'm Jitisha. Hi guys, Lakshita here. And welcome back to a new episode of Akshitis. Hi guys, सबसे पहले वीडियो वाले लोगों के लिए we have a guest. Hello everyone, namaste. And her name is Anisha. And Anisha और मैं जिम में मिले थे, like we met in lockdown I guess. और तब से we know each other kind of. And हाँ मतलब on and off बात होती रहती है. और इंट्रोडक्शन तो अपना खुद दे सकते हैं. Hello everyone, my name is Anisha, as she told. I'm a BCom Honors graduate from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. अभी यहाँ in vlog I'm no one. आप मेरी क्यों सुने? Because I've experienced something and I can share that experience with you. And I really hope that helps. Thank you. So I guess सबने वो तो पढ़ ही लिया होगा. But let's introduce to our topic, which is mental health. एंड ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए ना हमें एक्चुअली कोई चाहिए था जिसने आई गेस मेडिकल हेल्प ली हो. लाइक आई गेस सब लोग कहीं ना कहीं डील करते हैं इस चीज़ से आई गेस. तो मेडिकल हेल्प जहाँ आ जाती है ना वहाँ थोड़ा सा ऐसे यू कैन से लाइसेंस हो जाता है. है ना. सो वी नीड समथिंग कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. So let's dive into the topic and yeah. So basically हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें कि हमने क्या डील करी चीज़ों से. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा है ट्रेंड में, सब बातें करना चाह रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं कि क्या इश्यूज होते हैं, कैसे सॉर्ट होते हैं. एंड समवन जिसको मेडिकेशन मिलता है तो आई मीन देयर समथिंग वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है. सो आई वुड लाइक अनीशा दीदी तब से पहले अवेयरनेस लाइक क्योंकि आई गेस सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट सबकी लाइफ में आता है जब होता है कि बस सैड ही चल रहा है. और इट्स नॉट अबाउट कि करियर हो या कुछ भी हो, वो सब एक है स्पॉट सबकी लाइफ में कि आप सैड ही रहते हो, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन. बट व्हाट इज दैट अवेयरनेस वाली चीज़ कि आपको पता चला कि नहीं दिस इज समथिंग सीरियस. Okay. So basically, I'll start by correcting a word she said, that was trend, because that's the actual villain है. Sometimes things become so trendy कि आप actual difficulties को trends को differentiate नहीं कर पाते हो. Then you self doubt that what's happening with me, is it really true or is it something just someone has put into my ears, or I'm just reading Instagram quotes, that's why I'm sad. Because everyone goes through a sad phase in life. So एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, there is difference between publicity of something and awareness of something. हम आजकल publicity of mental health ज़्यादा कर रहे हैं instead of awareness of mental health. And that's why I also request people who are actually suffering from them that they should not be very open about it, like very personally open about it to everyone, though I am. It is not easy actually. It is not that easy, but it is not equally easy to not be open about it. मेरी स्टोरी थोड़ी अलग थी कि मैं क्यों ओपन अप हुई इस बारे में. वो भी एक तरह से मुझे ईजी लगा टू ओपन अप, इसलिए भी हुई, अदरवाइज मैं भी नहीं होती. सो 90% ऑफ द टाइम यू शुड बी डीलिंग इट ओनली इन योर क्लोज सर्कल, बिकॉज either it's a stigma or either it's a trend. या तो लोग ऐसे लेंगे कि you are trying to just pull attention, या लोग ऐसे लेंगे कि oh it's a stigma, this girl has something wrong with her. So just don't trend any set with mental health. Don't go for any trend with mental health. Quietly read about it, quietly know about it, quietly tell people about it in one-to-one conversations. और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप बहुत जिम्मेदारी से उस चीज़ को डाल रहे हैं. आप वो चीज़ अच्छे से फेस कर चुके हो तभी डाल रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड और एक there is a word which is trauma bonding. So in Delhi, it used to be very much into trend to call, oh, we are trauma bonded, I'm into trauma bonding and this, because that was very misunderstood. Trauma bonding is not bonding over trauma, कि तुझे भी trauma है, मुझे भी trauma है,
हमारी बन गई। हम दोनों के दोस्त बन गए या हम बॉन्ड कर रहे हैं, सो इट्स ट्रॉमा बॉन्डिंग. सो देयर आर मेनी टर्म्स लाइक दैट, गैस लाइटिंग या नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, which are very deep in actual life, but we don't read about it, we don't scientifically know about it, and we just use these terms. Metropolitan cities में ये और ज़्यादा होता है, जबकि ट्रॉमा बॉन्डिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी एक पर्सन को बचपन से या किसी एक चीज़ को लेके बहुत ट्रॉमा रहा हो और वो बहुत अकेला लोनली रहा हो और वो किसी और इंसान से अटैच हो गया. सम फर्दर पर्सन केम इनटू दैट पर्सन्स लाइफ और वो उससे इतना अटैच्ड हो गया कि उसके ट्रॉमा को वही पर्सन हील कर रहा है. तो वो उस पर्सन को लेट गो ही नहीं कर पाता. अब वो बात उस पर्सन को पता है तो वो उसको मिसयूज करने लग जाता है, नहीं पता है तो भी इट समहाउ कि वो उस पर्सन को लेट गो नहीं कर सकता. सो getting out of that trauma bonding situation is like you're living another life, another birth to yourself. So it's not as casual and as trendy as we use those terms. एक्चुअली द थिंग विद जो ट्रेंडिंग और अपन जो बात करते हैं ना, इट्स इज कि अपने पेरेंट्स की जनरेशन में ना लोग बात नहीं करते थे, लाइक वी आर मेकिंग कॉन्वर्सेशन, तो वो अब लोग बात कर रहे हैं तो सब बाहर आ रहा है. Yeah. अब वो मेंटल हेल्थ कर लो या फिर कुछ भी कर लो, लाइक जैसे मी टू मूवमेंट चला था, सब लोगों ने धीरे धीरे वो सब बाहर आने लग गया, तो वो ट्रेंड अपने आप बन गया, आई गेस. Yeah, so, So- that's about the smart minds. Like we have very fools around us. That's about the smart mind. That you talk about it. That like we are talking about it. We are actually trying to get to a conclusion about it. Exactly. People try to be like boast about it. Yes, I know about mental health, or Yeah. we all are going through this or that. No, sit and talk to that person and then realize कि उस person को ऐसा कुछ सच में है या वो लाइफ के सिर्फ एक sad phase से गुजर रहा है. हाँ. So what is like, how will you differentiate if you can कि इस person के सिर्फ sad phase चल रहा है या फिर this person is actually dealing with this, like a proper problem? Look, first thing is when something has happened, you're of course going through a sad phase. हाँ. Sad phase के लिए एक reason होना बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है. है. तो हाँ, अगर आपके साथ रिसेंटली कुछ हुआ है तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप उससे रिएक्ट करोगे, आपकी बॉडी भी उससे रिएक्ट करेगी. सिट विद दैट पर्सन, उसे समझाओ कि इट्स ओके, आप सैड फेज से गुजर रहे हैं या आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी डिसऑर्डर एंड एंजाइटी इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग. सो यूजिंग द वर्ड कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपके अंदर एंजाइटी सिम्टम्स दिख रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ सैड फेज, एनालाइज दैट, ट्राई टू हील, मेडिटेशन करो या जो भी आपका मन करे, जस्ट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट सैड फेज. दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन, आई फील लाइक. बट अगर एक इंसान सैड फेज से बहुत पहले से ही गुजरता जा रहा था या उसकी बैक टू बैक उसकी लाइफ में सैड फेज आ रहे हैं, तो वो अपने आप एक सर्वाइवल फेज में आ जाता है कि यार आई एम अ सर्वाइवर. वो ना धीरे धीरे व्हेन यू सिट एंड टॉक इन पर्सन, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, तब समझ आता है ओके कि इसके साथ प्रॉब्लम्स आती जा रही या एट प्रेजेंट इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन exactly. इसका दिल थक गया है. एक मैं ये टर्म हमेशा यूज़ करती हूँ दैट माई हार्ट हैज़ torn off, या मैं थक चुकी हूँ. ऐसा नहीं था आई नेवर हैड द स्ट्रेंथ, बट आई शोड द maximum amount of strength कि now my heart wants to relax. So it's also okay that my heart wants to relax now. उसने कह दिया है कि मैं थक चुका हूँ, तुम्हें ब्रेक लेने की ज़रूरत है. So when that phase comes in your life कि you have gone through the sad phase but now you're tired of surviving it, then comes the part. And उसमें भी फिर आपको ये चीज़ एनालाइज धीरे धीरे होती है when you are studying about these things, when you are actually going through these things कि हाँ इसको एंजाइटी डिसऑर्डर सिम्टम्स तो नहीं है. क्योंकि एंजाइटी होना इज अ नॉर्मल थिंग. आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, भाई स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है. इन माई लाइफ आई नेवर यूज द टर्म एंजाइटी बिफोर आई एक्चुअली गॉट डायग्नोस्ड विद एंजाइटी डिसऑर्डर. आई ऑलवेज यूज टू यूज स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस होता है, कभी कभी एंजाइटी होती है, एंजाइटी में पसीना आता है, घबराहट होती है, शेकिंग होती है, दैट्स सिर्फ एंजाइटी. Everyone has anxiety. No person in this world has not gone through anxiety. ऐसा नहीं होता कि हाँ मैंने कभी anxiety नहीं देखी. But if someone has anxiety disorder, that's a very big thing. फिर उस इंसान को ये देखना पड़ेगा कि वो anxiety के disorder के किस stage पे. Okay. क्योंकि So that's also you suggest like अपने आप को you need to diagnose, like you need to read about it. You have to self-diagnose. There is no other person who can do that for you.
no other That's person. nice. That's Even the nice. doctors can't do that for you. Like I remember last year I was preparing up for something and हमारी बात हुई थी. So you were taking therapy उस time पे. Yeah. तो like therapy did really help you. Yeah. On this also, I have many friends who are going through depression, anxiety, and I have a kind of circle. So therapy helps someone, therapy doesn't help someone. Some therapists help someone, and It depends some on the- it depends. Like I've been to 3 therapists and only one helped me. बाकी 2 मुझे एंजाइटी बढ़ा देते थे, ऐसा हो जाता था. मतलब एक थेरेपिस्ट के पास कुछ ये भी था कि मैं उनसे 8 महीने से थेरेपी ले रही थी, तो एक लिंक बन जाता है. देन यू हैव टू स्टार्ट दैट स्टोरी ऑफ योर्स अगेन ना, तो तुम्हें वो सब रिकॉल करना पड़ता है. सो यू गेट मोर एंशियस कि ओ आई हैव टू रिकॉल ऑल दैट अगेन, आई हैव टू रीड दैट बुक फ्रेश अगेन. सो मुझे वो सब वापस याद आएगा यार, आई डील विद इट. सो आई डोंट वांट टू come out again and maybe it's not वापस वो breakdowns वापस आ रहे हैं. because it takes strength to come out to a person कि I'm feeling this, yeah, I went through this, yeah, I went Exactly, through this. हाँ. You don't feel safe with everyone. So एक therapist थी, उनके साथ मैंने 1.5 साल सेशंस लिए. अब मैंने सेशंस लेना बंद कर दिया, तो I was safe with her, but many friends are there जिनको थेरेपी सेशंस नहीं पसंद आया. एक्चुअली मैंने जब अपनी बात हुई थी तो मैंने आई ट्राइड ऑनलाइन पे. Like I didn't took much sessions. I took only 2 or 3 sessions. So like which was in my budget उस time के according. So मैंने उस time पे सिर्फ ऐसे ही and I even suggested कि मतलब मैंने 3 sessions लिए और मेरे को help कुछ नहीं हुई. But जब मैं खुद बात करती थी ना, तो it was like मुझे मैं खुद को सुन रही थी. ऐसा. So it depends actually कि मैं क्या कर रही हूँ. I feel like that. लोगों को लगता है कि थेरेपिस्ट के पास जाओ सब सही हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता. इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. यू हैव टू बी ओपन इनफ कि आप खुद की स्टोरीज बताने के लिए पहली बात आप कंफर्टेबल हो या नहीं. हाँ. और मेरे को लगता है स्टेज में आती है व्हेन यू आर डन एंड यू एक्चुअली वांट टू हील योरसेल्फ कि भाई अब मुझे हील करना है खुद को. अगर उस सिचुएशन में मुझे किसी को कुछ शेयर भी करना पड़े तो ओके फाइन, मैं शेयर कर दूंगी अगर मुझे खुद की हीलिंग जर्नी करनी है. मैं जब थेरेपिस्ट के पास गई थी ना, मेरे को कुछ नहीं पता था. आई वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी. बस मैंने एक सेशन, पता नहीं कि मेरे दिल की आवाज़ ने कहा कि मुझे एक सेशन बुक करना है, तो मैंने एक सेशन बुक किया एंड आई वेंट टू द थेरेपिस्ट. आई वॉज वेरी हैप्पी. बस एक ही प्रॉब्लम थी विच वॉज अननेचुरल टू मी कि मैं रो नहीं पाती हूँ. मतलब वो निकल नहीं पाता. हाँ, किसी भी वे से निकलना, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे रोना अप्रोप्रिएट है कि इस इंसान को रोना चाहिए इस सिचुएशन में, वहाँ मैं रो नहीं पाती हूँ. आई एम बिकमिंग टू स्ट्रॉन्ग. वो होता है, अपन कुकून बन जाते हैं. हाँ. मुझे ऐसा लगता है काफी सिचुएशन में जब हमने ना वो दिखा दिया ना कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यू डोंट वांट टू. अब क्यों दिखाऊं मैं? और फिर वो आपका एक लोनली फेज होता है जब वो सब निकल जाता है. बट आई गेस मतलब जैसे मैंने एक बार आई गेस स्टोरी देखी थी तेरी, इसमें यू सेड कि ना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा हो तभी आपके साथ एक वो एंजाइटी फेज जो होता है. उस टाइम मेरा एक्चुअली फेज ही था, क्योंकि वो चीजें एक के बाद होती जा रही है, देन यू जस्ट लूज ऑल होप. लाइक कुछ बचता नहीं आपके पास. बट ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग. वो ऐसा होता है कि बिल्कुल लाइक अंडर द लाइन रहते ही हैं वो. दैट इस सिचुएशन में रोना चाहिए तो मैं हंस रही हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम आई एम क्राइंग ओवर दैट फैक्ट अलोन. यस, नाउ आई एम अलोन. अब वो हिट हो रहा है, अब मैं रो रही हूँ और बेवजह बातों पे रो रही हूँ. मेरा लैपटॉप खराब हो गया, रोना आ गया, कुछ हो गया, रोना आ गया. इट्स समथिंग इज ट्रिगरिंग एंड आई एम रोइंग, आई एम क्राइंग. So I went to the therapist and I remember my therapist said this to me. Every session I've taken it with a broad smile on my face. No matter how difficult situations I've shared with her, I've shared with a broad smile in my face. So she said, आपको smile करने की आदत हो गई है. You smile in मतलब most difficult situations. जहाँ पे आपको smile करना ही नहीं है, वहाँ पे भी आप smile करो. Once she cried with me, तब जाके आया क्राई. और उस दिन तो मैं इतना खुश थी कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं आज का सेशन कैंसिल कर सकती हूँ. उस सेशन में जाके मैं सबसे ज्यादा रो के आई थी. सो यू नेवर नो विच थेरेपी सेशन इज गोना वर्क फॉर यू, विच थेरेपिस्ट गोना वर्क फॉर यू. लोग ये गलती ये भी करते, गलत थेरेपिस्ट चूज कर लेते. एक्चुअली करियर थेरेपिस्ट होता है, चाइल्ड थेरेपिस्ट होता है, LGBTQ+ फ्रेंडली थेरेपिस्ट है कि नहीं. रीड अबाउट द थेरेपिस्ट बिफोर यू गो टू द थेरेपिस्ट, हाउ एम्पैथेटिक द थेरेपिस्ट इज.
वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट बहुत एम्पैथेटिक थी, स्पेशली मुझे लेके उन्हें बहुत लगाव था। वो मेरे साथ रो दी थी, जबकि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि एक फॉर्मल Usually, हाँ। कॉन्वर्सेशन में होता है। शी इवन सेड सॉरी फॉर क्राइंग विद मी, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक थेरेपिस्ट रो दिया था, बट आई ब्रोक डाउन लाइक एनीथिंग, सो शी वाज लाइक हाँ, शी नेवर एक्सप्रेस्ड दिस, बट she could see something in me. She was like, why do you smile always? Like, I don't know, I have वो a आदत, habit, वो, I have a हाँ, habit. you have conditioned yourself कि हाँ. like I am like this, हाँ, मुझे यही you have to get हाँ, out of that conditioning. Exactly. और I really say people to go to therapy, because एक होता है ना थेरेपेटिक चीजें होती है और एक थेरेपी Therapy, होती है, बहुत 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 डिफरेंस difference होता है। दोस्त से बात कर ली, इट्स वेरी थेरेपेटिक, इट्स वेरी, I got I that. have a great bond with my best friend, I have a great bond with my cousins, I talk about every shit with them. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बात नहीं कर सकती, अब मैं तो बहुत ओपन हूँ, मैं किसी से भी बात कर लूँ, दैट डोंट वर्क, ऐसा नहीं होता, दैट डजंट वर्क कि हाँ भाई उस वजह से मैं थेरेपी नहीं लूँ। जो मुझे सुकून थेरेपी में जाके मिलता था वो थेरेपी में जाके ही मिलता था, क्योंकि वो मुझे बताती थी कि मुझ में क्या कमियां हैं, क्योंकि उन्हें पैटर्न्स रीड करने आते थे, उन्हें डेफिनेशंस पसंद, हाँ done some degree. हाँ, उन्हें डेफिनेशंस पता थी चीज़ों की, मुझे वो डेफिनेशन बताती थी कि आपको ये कंडीशन है, इसकी ये डेफिनेशन है और आप ये करते हो। लाइक आई हैड द हैबिट ऑफ कैटास्ट्रोफिक थिंग्स, और वो अभी भी है, छोटी चीज़ को बड़ा बना दो। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में नो दिस वुड हैपन, माय टीचर वुड स्कोल्ड मी, हो जाएगा, आगे plan out. ये होगा। ओवरथिंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू रीच टू अ पॉइंट दैट बस मैं अभी रोऊंगी, भले ही वो चीज़ स्टार्ट हुई भी नहीं नहीं हुई हो। हो। So you catastrophe things like that you make your life hell. So they know the terms, they know the patterns, then they take you out of the, वो आपको एक्टिविटीज हाँ, करने को exactly. देते हैं, वो आपको बाउंड्रीज बताते हैं। मुझे याद है, मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने एक गोला बना के दिया था कि दिस इज योर लाइफ, तुम एक गोले में हो, सब लोग इसी में होने चाहिए, ये तुम्हारी मर्जी है, तो तुम्हारी इच्छा ही ये है कि मेरे सारे लोग इसी गोले में होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हाँ, होता। नहीं है। क्लोज फ्रेंड्स, देन आउटर सर्कल, then an outer circle, then unknown people, ऐसे circles होने चाहिए, and put that in your brain and then make circles like that. And I tried that. I really did that. I'm not available for anyone 24/7. अभी भी होता है कि कोई मेरे साथ प्रॉब्लम लेके आता है ना, तो हम लाइक नो, आई हैव टू हेल्प दैट पर्सन, चाहे मेरी जान चली जाए। पर फिर यू हैव टू रियलाइज कि उस पर्सन ने आपके लिए क्या किया है, वो पर्सन दिल का कितना अच्छा है, उसको मेरी ज़रूरत है कि नहीं है, वो मेरे बिना भी काम चला सकता है, क्योंकि एक वेयर एंड टेयर आपकी बॉडी और हार्ट का भी होने लग जाता है, वो मेरे साथ बट होने फिर लग मुझे जाता ऐसा लगता है ना, ये सब जो तुझे बोल रही ना, लाइक आई फील लाइक व्हाट वी गिव आउट, लाइक वी गेट दैट, ऐसा होता नहीं है। पर No. मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सब हाँ. हमारे माइंड के अंदर होता है कि लाइक इफ आई विल बी गुड देन वो कम, इट विल कम बैक, बट वो ऐसा होता है कि सिचुएशन आपको वहीं घुसा के वहीं, यू विल बी द कल्प्रेट एट द एंड। So I have a very clear rule. I don't believe in karma, and I don't do good to get back good. I That never is- do good to get back good. अगर मैंने सोचा है मेरे दिल में, अगर if I have made this strong decision that I want to help that person, I want to love that person, I'll do that without expecting that Without in return. expecting. Which can be wrong, but I know my personality is this strong कि I can handle अगर मुझे वो वापस नहीं देगा, क्योंकि मैंने वो बचपन से एक्सपेक्ट नहीं किया। इट्स लाइक अगर आप अच्छे के बदले अच्छा मांग के अच्छा कर रहे हो, तो वो एक अच्छी वो एक सोच ही नहीं सर्कल है, वो एक हाँ, वो चलता रहेगा, वो एक अच्छी सोच ही नहीं है। आपकी अच्छाई शुरू ही एक सेल्फिश मोटिव से हो हुई रही है। कि भाई मुझे बाकी बाद में बदला चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। सो नो, जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इन गिविंग। When you Yeah. start finding happiness in just giving ना, then you are already happy. Like you You are know, satisfied. हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में। अच्छा नहीं लग रहा, गिफ्ट समन समथिंग, तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी तुम्हें भी गिफ्ट देगा, करे, हाँ, तो exactly. तुम्हें बुरा लगेगा कि वो नहीं दे रहा गिफ्ट। एग्जैक्टली। सो या लाइक मुझे ये भी बात करनी थी, लाइक लोगों को पता है ऐसे भी लगता है कि ना मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड, ये सब चीज़ें ना थोड़ी एक सोसाइटी ही बात करती है। लाइक कोई जैसे हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो लाइक ये दे कांट टॉक अबाउट सच थिंग्स, बिकॉज आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक मेरे को लगता है कि ये हर कोई डील करता है, एंड आई गेस लोअर क्लास पीपल ज़्यादा डील करते हैं इन सब चीज़ों से। या इट्स मोर ऑन द अपब्रिंगिंग, बहुत ज्यादा। लाइक चाइल्डहुड में क्या आपने फेस किया है? अपब्रिंगिंग पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज
women talking about mental health and men talking about mental health is two very different. Like I've experienced it. Some boys in Delhi were very cool with talking about it, but वैसे in general boys don't talk about it. I don't know the stigma that there in boys, that's in their upbringing, that you have to be strong. There's nothing like mental health. Like I went through that even with my own brother when I got diagnosed with anxiety disorder and this and that. He understood me like he knew my soul more than me. But when this hit, he was like, I don't know this concept. How to help you? I don't have any idea. He said me that बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें सच में नहीं समझ आती और अब मुझे गुस्सा आता है. I'm like, we girls are always there. हम सुनने को हमेशा तैयार होते हैं. कोई लड़की कभी नहीं कहती कि वो एक लड़के को नहीं सुनना चाहती. वो लड़का आके बोलना नहीं चाहता, वो लड़का आके बोल ही नहीं पाता. उसको बैठ के रुला लो, रो जा, वो फिर भी नहीं रोना चाहता. So it comes a lot in upbringing. Also lower income groups में actually ये ज़्यादा है. Please note this particular thing is a very big stigma. आप जितना रिच हो, आप जितना बाहर गए, आपको जितना वर्ड्स के बारे में पता चला है ना, आप उतना उनको लेते हो. आप समझदार हो, आप ऐसा कभी नहीं करोगे. जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ, आई एम प्रोबेबली द मोस्ट मॉडर्न पेशेंट है, प्रोबेबली द मोस्ट अवेयर एंड मॉडर्न पेशेंट है. लोग वहाँ सिर्फ गाँव से आते हैं, सारे सिर्फ गाँव के पेशेंट्स वहाँ आते हैं, जिन्हें इन चीज़ों के बारे में, शब्दों के बारे में कभी कुछ नहीं होगा, कभी सुना नहीं था. मैं किसी भी हॉस्पिटल में गई, मैंने नहीं देखे कि मॉडर्न लोग आ रहे हैं या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ें या वो उन चीज़ों के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं. बिकॉज they're more afraid because they'll be talking to other people and then people would be biased on the basis of trend and this and that. lower people में भी ये होता होगा, भूत चढ़ गया, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया. वो सबको दिखाने के बाद डॉक्टर के पास आते. काफी लोगों से बात की मैंने हॉस्पिटल्स में, तो बाबा को दिखा लिया, यहाँ दिखा लिया, वहाँ दिखा लिया, कहीं नहीं इलाज हुआ, फिर डॉक्टर के पास आए तो अब इम्प्रूवमेंट है. वो खुद बोलते हैं ये चीज़. कभी मैं हॉस्पिटल की स्टोरीज डालती हूँ जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ. मेरा हॉस्पिटल जयपुर में, एकदम ऐसे लोग आते हैं बिल्कुल फार्मर्स, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की हो, सिटी लाइफ, हाँ, जिन्होंने सिटी लाइफ ही ना देखी हो कभी. दैट इज टफ टू इवन, मतलब क्योंकि कोई फार्मर अगर ऐसी चीज कर रहा है तो इट इज टफ फॉर देम. लाइक दे आर आल्सो ब्रेकिंग सम, मतलब आसपास के लोगों को भी पता चलेगा. सो इट इज अ ग्रेट, इट्स लाइक जब आती है ना खुद पे तो करना ही पड़ता है. The thing is, लोग मुझसे पूछते हैं कि when is the time to go to the doctor. जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी ना, जब तुम्हें सांस नहीं आएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना है. वो रेड आजकल एक कोई रील वायरल हुई है कि हाउ मच टॉक्सिसिटी तुम ले सकते हो. दैट पर्सन आंसर ना कि हाउ मच पॉइजन यू कैन टेक टिल यू डाई. मैंने भी कुछ दिन पहले देखे. इट्स लाइक दैट, यू नो कि भाई ये इनफ हो गया, आज जो थी ये सीमा थी. इट्स विथ एवरीथिंग. आई डू फॉलो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट. मैं क्वालिफिकेशन देख कर ही लोगों को फॉलो करती हूँ और वो जो कहते हैं उन पैटर्न्स को सोचने समझने की कोशिश करती हूँ. माय फादर हैज ऑलवेज टॉट मी दिस वन थिंग, यू लिसन, you analyze what you think is good for you or what you think can work for you, just take that in and throw away the other information. Data and information में यही फर्क होता है. डेटा बहुत सारा आ रहा है आपके पास, तो इन्फॉर्मेशन वही है जो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि हर इंसान भी अलग है ना. साइकोलॉजिस्ट जो बोल रहा है जरूरी नहीं है सब आपको. और सबसे बड़ा स्टिग्मा इज हाउ टू डील विद इंडियन पेरेंट्स. लाइक ये चीज आई डोंट थिंक सो किसी को समझ आता है, एंड दे हैव डेल्ट अपने टाइम में बहुत अच्छे से, बट वो इस चीज़ को एक लाइसेंस चीज़ समझते नहीं. लाइक कोई सर्दी हो गई, बुखार हो गया, ये सब चलेगा, बट यू आर नॉट फीलिंग. ये क्या होता है? अभी मेरे पापा का हमसे सुबह उठो 5 बजे वॉक पे जाओ, सब सही हो जाएगा. And even if you cry for little things, they are like इसमें रोने की बात है. एंड कहीं ना ऐसी चीज है ना, आपको अपब्रिंगिंग हो जाती है कि आप अपना रोना दबा रहे हो, इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, तो वो इट लीड्स टू अ बिग इशू लेटर. वो बहुत बाद में समझ आता है. तो how you dealt Indian parents? It was very peculiar with me. The thing was कि whatever happened with me, उसको 3-4 साल तो हो चुके थे. Like my brother passed away in 2019. तो and he got diagnosed with cancer in 2017. तो actually problems वहाँ से ही start हुआ था.
but at that point I had my greatest strength and strongest face there in front of everyone. तो मुझे भी कभी रियलाइज नहीं हुआ, कभी रियलाइज हुआ ही नहीं। जब मुझे वक्त मिलने लगा, एक होता है व्हेन यू आर टू बिजी विथ योर पेन यू डोंट रियलाइज दैट यू हैव You're अ busy पेन। so much in हाँ, your life यू as आर well. बिजी सो मच इन योर लाइफ, in your pain, in your goals, that yes, to remove that pain I have certain goals and I have to achieve those goals। तो तब बिल्कुल रियलाइज नहीं होता। बट व्हेन यू गेट फ्री फ्रॉम लाइफ कि हाँ वक्त 2020 आया, हाँ। कोविड आया, यू आर होम। आई वॉज हैप्पीएस्ट इन 2020। पता नहीं, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अपने लिए इतना टाइम कभी निकाला ही नहीं था। बोर्ड्स में मैं इतना बिजी थी कि मैंने निकाल लिया। तो फर्स्ट फेज ऑफ कोविड वाज वेरी नाइस फॉर मी। टचवुड मेरी फैमिली में भी किसी को कोविड नहीं हुआ था और मैं पर्सनली बहुत ग्रो कर रही थी। आई कुड फील माई सेल्फ अगेन, सो वो अच्छी बात थी। बट देन द सेकेंड फेज केम ना, तब तक ज्यादा वक्त हो चुका था। तब वो ज़्यादा मेरी introspection अच्छा तब नहीं वो होता। ज्यादा वो जो अंदर का पास्ट सब पेन हाँ। था वो रेट्रोस्पेक्शन होने लग गया था। एंड स्टार्टिंग इससे हुई थी, आई यूज्ड टू हैव एक्सट्रीम मूड्स। लाइक एक दिन में मैं या तो सुबह बहुत खुश उठ रही हूँ कि बिल्कुल एकदम नाचते उठ रही हूँ, और शाम तक बिल्कुल एकदम ही मूड खराब है कि कोई मुझसे बात भी नहीं कर सकता। या तो फिर मैं सुबह इतनी सैड उठ रही हूँ और शाम तक एकदम ही नाच रही हूँ। ऐसे आई यूज्ड टू हैव एक्सट्रीम मूड्स। तो चीज़ें वहीं से खराब होने लगी थी। मैंने 4 थेरेपिस्ट को दिखाया, मुझे आता है, मैंने तब भी थेरेपिस्ट को दिखाया था क्योंकि मुझे तब गड़बड़ लगने लग गई थी। I used to start having this fear of dying. This was where it started. That I have a fear of dying now. That my brother has gone, now it's You my have seen turn. that वो Now obviously it's तो my है। turn. We have some genetic problem. I might die now. And what about my parents after that? And this and that. We were struggling with things even then also. So it started in that 2021 phase, and my parents got to know in 2023. सो मतलब मैंने कम से कम 1.5 साल तो अकेले ही डील किया था। पर एक वो जो होता है ना कि हाँ लिमिट आ जाती है, वो लिमिट आने लग गई थी। मैं अपने पेरेंट्स को कभी बताना नहीं चाहती थी। मैंने सेशंस लिए हैं खूब मैंने भी साल। कभी वो हाँ, चीज़ का अभी भी मैं नहीं बताना हाँ, पसंद हाँ, करती हाँ। क्योंकि इट्स ऑलवेज मुझे लगता है इट इज ऑलवेज इजी टू से लाइक बाद में कुछ भी आपने कर लिया तो बाद में माफी मांग लो, से सॉरी और व्हाटएवर दे वो सुनाएंगे सुन लेंगे। बट परमिशन मांगना या फिर ये चीज ना जो आप पहले भी फेज में होते हो ना, बिकॉज यू आर आल्सो वल्नरेबल, या करने के बाद यू नो व्हाट यू आर डूइंग। जैसे मैं कुछ दोस्त को जानती हूँ जो मेडिकेशन ले रहे हैं, पेरेंट्स आर क्वाइट सपोर्टिव। अभी पहले से हम कंपेयर करें तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब वो दिख रहे हैं ना उनको, मुझे लगता है काफी चीजें वो लोग भी देखते हैं ना कि लाइक काफी चीजें बदल रही हैं। लाइक टाइम एकदम से ये सोशल मीडिया बूम बोलो या फिर एकदम से इंटरनेट बूम, तो इससे काफी चीजें चेंज हो रही हैं। सो my perspective is a little different. Look, I was very privileged. I was a privileged child, and I'm very grateful for this. I had a brother who was supportive. So 1.5 साल मैंने सिर्फ भाई को बताकर और अपने बेस्ट फ्रेंड को बताकर काम चलाया you have था। a sibling, that is very great. So मैंने बस उनको बताकर काम चलाया था, तो it went nice. Like I was alone in Delhi, so I needed someone. So I was vocal about it. But then things started being like कि उनसे भी काम नहीं चल रहा और थेरेपी से भी काम नहीं चल रहा। मतलब it used to be like कि 15 डेज में एक सेशन हो रहा है, तो मैं उस 15 दिन तक उस सेशन का वेट कर रही हूँ। तो वो एक दिन चाहिए होता था मुझे कि उस थेरेपी सेशन का डे नहीं आ जाता था ना, तब तक मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ। मैं सिर्फ बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, ये और वो। आई डिडंट नीड टू टेल माई पेरेंट्स। The thing was so apparent, so obvious that my mother was so worried about me that my parents used to like make me sit and ask me कि हुआ क्या है। I had no answer because मुझे पता ही नहीं है हुआ क्या है। जो भी हुआ था पास्ट में हुआ था। I'm like at present my life is very good, but something is there. I'm randomly crying in a class that's going on. आँख बंद करो आंसू आ गए, आँख बंद करो स्माइल कर रहे हो। अब ऐसे इमोशंस से गुजरने लग जाते हो। यू ऑलवेज हैव अ गिल्ट है, गिल्ट ऑफ व्हाट यू डोंट नो। मतलब कभी कभी इतना बुरा होने लग जाता है दैट यू जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास कि नो आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ गिल्ट ऑफ व्हाट पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है किसी का खून करके आई हूँ। इतना गिल्ट आ रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है किसी चीज़ का। The feeling of fear,
बिना किसी बात के किसी बात का। जिन चीज़ों से आप कभी डरते नहीं थे उन चीज़ों को लेके डर आना, दीज आर सम सिम्टम्स जो आपको नोटिस हमेशा करने चाहिए, और इनिशियल स्टेज पे नोटिस कर रहे हो तो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए. लाइक आई यूज्ड टू गेट अफ्रेड ऑफ राइटिंग पोइट्री. And that was your हाँ, forte, I या guess. लाइक पोइट्री विज समथिंग, मुझे आप माइक पकड़ा दो, आई कैन ऑन स्पॉट स्पीक अ पोइट्री, वहीं पे दिमाग में बनाकर लिख कर वहीं के वहीं. आई वॉज सो फ्लुएंट इन पोइट्री. आई गॉट अफ्रेड ऑफ राइटिंग पोइट्री, देन आई स्लोली गॉट अफ्रेड ऑफ वॉकिंग, like going on a walk, dancing. I got afraid of everything that was my hobby. And when you lose your hobbies, your interest, your parents see that. So my mother, my father saw that. They were like, "Kya hua?" I'm like, I don't have any answer to that. Then they came. My anxiety became very intense. I guess 29 September was the date. You have some physical वो भी problems too. Problems, Like I pooped some 11 to 12 times that day. I didn't God. come out of the bathroom. मैं इतना ज़्यादा anxious थी. I'm crying. उल्टी आ रही है, I'm pooping. बस यही चल रहा था. मतलब एक एग्जाम था, उससे पहले एक एग्जाम I was writing. I was so anxious कि मुझे उल्टी आ रही थी. I was like कि मुझे एग्जाम देना ही नहीं है. I want to leave it and I want to go out of the room. So things started became this intense. Then my parents sat me down. दशहरा का दिन था. I said, I don't know what's wrong, but something is wrong and I have no idea what's wrong. I am taking therapy sessions, but nothing's helping me. That was Dashera's day, 5th October. दशहरा था उस दिन. और मुझे दशहरे के दिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर खुद ही उन्होंने लिया, मुझसे कुछ नहीं बोला. उन्होंने कहा आधे घंटे में हम निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू द डॉक्टर, वी आर गोइंग टू द साइकियाट्रिस्ट एंड दैट्स इट. And then we went to the psychiatrist and the diagnosis was severe. The problem was my diagnosis of depression and anxiety was severe. So doctor didn't give me chance to even think once before taking the medicine. She was like, अभी दे रही हूँ, अभी गोलियाँ खाना स्टार्ट करो. Which was something जो मेरे साथ गलत हुआ. अगर किसी को इनिशियल स्टेज में भी पता चलता है या कभी भी पता चलता है, टेक टाइम बिफोर यू स्टार्ट मेडिकेशन. क्योंकि वो बोलते 6 महीने, बट मेडिकेशन इफ़ यू आर इन अ सीरियस डायग्नोसिस तो वो 2-2.5 साल लेता है. और मेडिकेशन नहीं लेना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट पाथ. इफ़ यू Medications, I guess, थोड़ा सा बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प helps, करता है. और लेना भी बहुत मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ लेना इनिशियल स्टेज में मुश्किल नहीं है. स्टार्टिंग के 6 महीने तो यू आर इन दैट फेज कि आप उन मेडिसिन को एक्सेप्ट कर रहे हो. मतलब 1 महीना तो योर बॉडी इज शिवरिंग. टोटली 24 घंटे आप अपनी बॉडी को कांपते देखोगे. 1 महीने तो कम से कम आपको आपके फेशियल मसल्स एग्जिस्ट करती है पता चल. मुझे कभी फेशियल मसल्स का किसको पता चलता है कि एग्जिस्ट करती है. उस वक्त पता चलता था. वो हमेशा खिंची हुई रहती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी. वो टेंशन यहाँ रहती थी फेस पे. आई हैव टू से माई ब्रेन रिलैक्स माई मसल्स. कम से कम 1-1.5 घंटा मैं अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करती थी, तब जाके मुझे नींद आती थी, जबकि मैं नींद की गोलियां खा रही होती थी. तो ऐसा होता था. मतलब 6 महीने तो मुझे मेरी मेडिसिन के साथ एडजस्ट होने में लगे. फिर आपको डॉक्टर के साथ एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है. तो वो बहुत सारी चीज़ें, बीपी लो हो जाता था, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, यू नीड ORS वहीं के वहीं तो चाहिए, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हो रहा है. सो मेडिकेशन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. आई कांट इवन डिस्क्राइब मैं कितने महीनों रात में नहीं सोई हूँ. कितने महीने मैं रात में सो ही नहीं पाती थी. I'm like, Mind is let so me much sleep, active. let me please sleep, God, let me please sleep, God. So you get to that situation कि भाई अब सामने वाले को दिख ही जा रहा है कि इसको घसीट के ले जाना पड़ जाए, पर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है. सो आई वेंट टू दैट सिचुएशन. बट द थिंग इज पेरेंट्स का सपोर्ट ना इनिशियली जितना रहता है बाद में उतना नहीं रहता. Because क्योंकि they see कि अब you are doing things. नहीं, द थिंग इज everyone gets tired. एक पॉइंट के बाद. There comes a point after which I'm not feeling okay. It's a daily thing. I'm feeling okay is something they'll be excited about. I'm not feeling okay is a daily thing. वो आपका हाथ 1 साल पकड़ेंगे. मैं 2 साल से तो दवाइयाँ ले रही हूँ. अगले साल कुछ महीने पकड़ेंगे, 1 साल पकड़ेंगे. Then they are like, यार हो गया यार, बंद कर नाटक. फिर एक पॉइंट में. and it's not about parents, हाँ, it's about everybody. it's Like about you yourself. everybody. हाँ,
एक बार को मेरे से भी हो जाता है कि यार निशा बंद कर यार, किसको दिखाना है यार, क्यों कर रही है ये नौटंकी, ऐसे वो अपने को वर्ड्स लग- खुद अपने को आप भी से बोलते हैं तो हम। सेल्फ हेट्रेड आने लग जाती है. बट आई एम लाइक I'm not trying to pull anyone's attention. Why would I do that? Everyone loved me before that. I was not someone. एक होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि हाँ कोने में छुपा कोई इंसान था, वो हाईलाइट होने की कोशिश कर. I was already in highlight. मुझे ये सब करने की जरूरत कभी थी ही नहीं. ये सब हुआ ना. And but the thing is, एक साल तक everyone was sweet. उसके बाद everyone started being toxic. Like especially my parents, they now they say harsh things and they don't realize कि I'm still in that situation. It still hurts me. वो ना उनको भी ऐसा होता है ना कि हाँ, कब तक चलेगा they're fed up, हाँ. but they don't realize I'm the one who's facing it, so I'm more fed up. मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मेरे इमोशंस पागल हो रहे हैं, तो मेरा दिमाग भी खराब होता है. एंड द थिंग इज द फियर ऑफ हैविंग इट बैक. इवन इफ यू आर एनी टाइम फीलिंग गुड, हीलिंग इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. तो तुम 3-4 साल आराम से मान के रखो. It is an ongoing journey, मतलब है ना, हाँ, it's you need an to check, ongoing like, journey. You हाँ. have to keep a check on that. Right. ऊपर से डिप्रेशन कैन कम एनी टाइम विद that intensity back. Okay, this hit you, I'm coming back. So you have that fear and you have to change your lifestyle and your mindset like that. And the people cannot change for you. That's something I'm even afraid about my future partner, that if he wouldn't be accepting that. And पता है सबसे मुश्किल बात ये हो जाती है when people are again and again blaming you that nothing's there. You are just, it's just in your mind, and they cannot read your mind. You try to show it physically. Then comes the self harm story. Self harm हाँ, story, I got that. ये वहां से आती है. सेल्फ हार्म कोई खुद से नहीं करना चाहता. एक तो ये होता है कि हाँ कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आप सेल्फ हार्म करना चाहते हो, वो आपको डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि हफ्ते भर तक मेरे को सिर्फ सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं ना, मतलब दवाइयों में गलती, दवाइयाँ चेंज करो. ये दो आई एम अ वेरी ब्रेव गर्ल एंड आई नो आई नेवर वांट टू टेक माय लाइफ. आई नेवर वांट टू, बिकॉज आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज ऑन You have to do a lot of हाँ things. Like, यस आई वाज. दो चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, आई कैन टॉक अबाउट दैट. एक फेज ऐसा होता है गलत मेडिसिन चल रही हैं, वो मेडिसिन मुझे ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रही हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स में सेल्फ हार्म आ रहा है. तो मंथ वीक बाय वीक चल ही रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रही. and you have to take that. हाँ, तो फिर मैं डॉक्टर को बताऊंगी, डॉक्टर मेरी फटाफट मेडिसिन चेंज करे. मतलब अगर आप एक वीक तक ये एनालाइज कर रहे हो ना कि आपको हर चीज पे सेल्फ हार्म का मन कर रहा है, But you तब need भी to, वो I guess, be aware. आपकी हाँ, यू हैव टू बी वेरी अवेयर. आई वाज वेरी अवेयर. I don't think so. I कोई thank notice me. करता है. Yes, I thank me for this thing. I was very aware. I used to talk to my best friend. If this is something very peculiar, I don't want to self harm myself, but these thoughts are still coming. These are involuntary thoughts. No one's putting it into my mind. just I'm not comes reading naturally. it anywhere. I'm happy, but it's like gas on किए चलो अपने आप को आग लगा लेते हैं. ऐसी What thoughts thoughts? आते हैं. My God. तो दीज आर स्टूपिड थॉट्स जो कि मेडिसिन की वजह से आ रहे हैं. आपको आपके डॉक्टर को बताते रहना पड़ेगा, आपको आपके डॉक्टर से बहुत लिंक में रहना पड़ता है इन दिस स्टार्ट. और एक होता है एक्चुअली जो सेल्फ हार्म का आता है, वो आता है दूसरों के कहने से, दूसरों के कुछ शब्दों से. you कि वो जब ऐसा कहते हैं ना कि तुम में कुछ दिखता नहीं है, कि You are the problem. हाँ वो- तुम में ऐसा कुछ डिप्रेशन जैसा दिखता नहीं है, यू आर मेकिंग इट योरसेल्फ. I'm like, I'll make you see my injury now. When you'll see the injury, you'll feel at Because least that is some physically empathy. visible. Because I want empathy. Every human wants Want empathy. empathy. तो वो वहाँ से आता है. तो वो सेल्फ हार्म की स्टोरी है. I got that. And मेरे को पता है, मतलब जब मुझे when I was reading about mental health, तो मतलब बुक्स तो मैंने भी कोई सी, क्योंकि बुक्स इज नॉट काइंड ऑफ थिंग जो आप पढ़ सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने ना आई हैव वॉच दैट मूवी सेलेना की, माय माइंड एंड मी. दैट मूवी विल लिटरली ब्रोक यू. मतलब दिस इज सच अ डीप थिंग. मतलब वो मूवी आई सॉ, आई कुडंट फिनिश दैट मूवी पूरी. मतलब शी इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शी हैज a lot of money, you can't, well, these things can't be judged इस सब चीज़ों पे, but still उसके पास ऐसे thoughts और ऐसी चीज़ें. So you should actually, I guess, know about it first, then you should even say कि मैं depression से जा रही हूँ. Yeah. क्योंकि मेरे को लगता है ना, लोग एक एग्जाम अच्छा नहीं बहुत है, बहुत randomly ये ये words बोलने लग जाते हैं.
मैंने अपनी लाइफ में कभी ये वर्ड्स यूज नहीं किए थे। मैं बचपन से बहुत अवेयर थी कि ये वर्ड्स ऐसे यूज किए ही नहीं जाते, ये वर्ड्स एक्चुअली डिसऑर्डर्स होते हैं। आई वाज वेरी अवेयर हाँ सिंस माय मतलब चाइल्ड। बट लाइक वी कांट से ऐसे हाँ। जनरली आई एम गोइंग विद डिप्रेशन, हाँ। यू शुड नॉट से, मतलब अगर आपको कोई पूरी नॉलेज नहीं हो तो, बिकॉज दिस इज वेरी डीप प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं Yeah. और कहीं ना कहीं हम हाँ। उनको भी वो कर रहे हैं let down. एंड देयर कम्स द इशू ऑफ कि आपको बताना चाहिए या नहीं नहीं बताना बताना चाहिए. जैसे कि मैं बोलती हूँ आई एडवोकेट नहीं बताना चाहिए, you are very open. हाँ, बट That is very- व्हाई डिड आई ओपन देम? द थिंग इज, जैसे कि सेलेना गोमेज का केस है या किसी का भी केस है, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है ना जिनका दुखी होना लोगों से एक्सेप्ट नहीं Accept नहीं होता. बिल्कुल Like you have always seen them. You have always seen them dancing and cheering and singing and Exactly. happy. Like I was the happiest child in my college. The whole college knew me. I was very famous, very happy. Not boasting about it, but it was very Like true. that is your personality. Yeah, Like, you have such a positive Positive aura vibe. and got you that. are such positive person. तुम्हारे पास बैठ जाओ आधा घंटा, you dance, you do anything, you don't give a fuck about everyone and this and that. That was my personality and that has always been my personality. But that Even is a big difference. There is a personality that you have for your own, and there is हाँ. a persona that you carry. हाँ. तो जब वो difference create करे ना, तो वहाँ हमें लगता है. I carry a positive persona. The thing is, my persona in whole is a very positive persona. Even if I'm in a depression phase, even in a You will depressive give somebody phase, a good vibes only. I'll only give good vibes. So it's very doubtful to people that how is this person claiming to be a depressed person. I started getting into my nerves very much. Like initial के 1-2 महीने when I was taking medicines, पता नहीं क्या हुआ, मुझे दुनिया में इतने कॉल पहले आए नहीं आए पता नहीं, आई डिडंट इमेजिन। आई यूज्ड टू गेट कॉल्स एंड मैसेजेस, यार आई एम सो जेलस ऑफ योर लाइफ सो नाइस, यू आर always happy, always traveling here and there and this and that. And I used to just think, traveling, what? I'm not getting out of my bed at this point of time. I'm taking depression and anxiety medicines. I'm in the most pathetic condition I've ever been in. और लोग मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं उन्हें सिर्फ थैंक यू बोल सकती And you हूँ। don't even feel that. हाँ, आप तक पहुँची क्योंकि नहीं मैं है. पर्सनली कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। आई एम अ वेरी वोकल पर्सन। लोग मुझे यही जानते हैं कि हाँ भाई इसको तो हर चीज़ की स्टोरी डालना पसंद है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनल रखना पसंद करती हूँ और वो मैं रखती हूँ। तो ये भी उनमें से ही कुछ था कि हाँ भाई मुझे भी नहीं जाना उस सारे नेगेटिविटी से कि यार यू आर फेकिंग दिस एंड दैट और यू आर डूइंग इट फॉर टेंशन। ना, मुझे भी नहीं जाना था उस सब चीज़ों से। बट आई वॉज सो फ्यूरियस। मैंने कुछ 2 महीने तक झेला फिर हम लाइक मेरा भी दम घुटता था कि यार नहीं यार बिना बोले तो मैं रह नहीं पाऊंगी। जैसे सेलिब्रिटीज लाइक सेलिना या कुछ भी कह लो, you are so rich, you have your own car, you have your own home, you have such a, you have fame. Same is with me. I live in a privileged house. I own a car. I have great bunch of friends. I've met only good people in my life, and ये सब लोगों को पता है क्योंकि मैं इस बारे में बात करती हूँ कि मेरे आसपास अच्छे ही लोग हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट पता है मेरे को तो ना, यू कांट कंपेयर पेन। हाँ, मतलब अगर मेरे को एक कांटा चुभने से कितना पेन हो रहा है, एंड यू कांट हाँ, कंपेयर, you cannot compare. I was a very sensitive person since the start. मैं उनको कभी बताते भी नहीं थे, मैं कभी उनको ऐसे आंसर बैक भी नहीं करती। I'm like thank you. But then came a phase, then came a point, then I'm like no यार, I want to be the voice, and very rare people should show up. choose to be a voice. Because नहीं झेला जाता भाई सबसे नहीं झेला जाता। स्पेशली मुझे पता था आई डू कैरी अ पॉजिटिव पर्सोना। दिस वाज समथिंग जो मेरे बारे में एक फैक्ट है कि मुझे लोग ट्रोल बहुत कम करते हैं, मुझे लोग सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ट्रोल कम करते हैं। क्यों, ये मुझे आज तक जवाब नहीं है इसका मेरे पास कोई। मुझे पता था मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ मे बी, हाँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज रियल एंड रेयर। मैं कभी एग्जैजरेट करके भी नहीं बताना चाहती और कभी कम भी नहीं बताना। और मैं जो भी बताना चाहती हूँ सिर्फ इस इंटेंशन से बताना चाहती हूँ कि लोगों की मदद हो, मेरी भी मदद हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और लोगों की भी मदद हो, सिर्फ इसलिए। सो everyone came with positive response, but that is not something जो सबके साथ हो। वो है पॉइंट। मैं अच्छे लोगों के बीच रही हूँ, मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, इसलिए ऐसा हुआ है।
बोलने से पहले आई डिसाइडेड, आई टॉक टू माई सेल्फ 100 टाइम्स, अनीशा आर यू रेडी, लोग तुमसे बुरा भी बोलेंगे And that will affect कहीं ना कहीं. दैट विल अफेक्ट मोर, दैट कैन मेक द सिचुएशन Situation worse. वर्स, आर यू रेडी टू फेस दैट? आई वॉज लाइक यस, हम बेटर देन दिस जो मैं सुन रही हूँ कि यार तेरी लाइफ कितनी लेविश है, ये और वो, आई विश वी हैड अ लाइफ लाइक यू. आई एम लाइक नो, आई डोंट विश एनीवन इन द लाइफ आई हैव. Exactly. सो देन आई स्पोक अप. बट इट्स समथिंग जो कि ना बहुत रेयरली होना चाहिए. बहुत रेयर लोग हैं जिनकी मजबूरी होती है कि उन्हें बताना पड़ता है तो वो बताते हैं, वरना कोई नहीं बताना चाहता. वरना कोई- साइकोलॉजिस्ट हाँ. बताए वो बात अलग है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम ही यही है और वो अच्छे से ये चीज़ें बता भी सकते हैं. बट नॉट एवरीवन शुड बी वोकल अबाउट इट. अपनी अपनी पर्सनल स्टोरी के हिसाब से, अपने अपनी स्ट्रेंथ के के हिसाब से हिसाब करना चाहिए एक्चुअली. हम मतलब फालतू में कूद जाएं और फिर बाद में अपन भाई. that is more It's with scary. everything. You want to come out as an LGBTQ community. That is- That's also on your strength and on the background you are with and this and that. Yes. That's I've seen them, those people struggling a lot. It's like I have a very strong. They struggle soft- a lot. I have a seen. very soft corner for those people. I have those people, people like us. I have friends who have come out to me and have taken it very normally. But I've seen people how Like, terribly they are not treat it. looked at normally. हाँ, That is the the thing basic is, problem. and the एक thing box is, में डाल दिया जाता है. their mental health is something beyond we Beyond can your imagine. imagine. Like I personally talk to those people, and मुझे इतना बुरा लगता है ना कि लोग ऐसे ही मजाक उड़ा देते हैं. They never चलो, realize हाँ. कि आपका एक कमेंट किसी के ना सुसाइड का कारण बन सकता है. क्योंकि मैंने सुसाइड नोट्स पढ़े. एक कमेंट उस इंसान को मिल जाए वो जिसने trigger मुझे हो जाता है. सुसाइड मतलब नोट वो भेजा होता है है, कि- तो वो ट्रिगर हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. और वो तुम्हारी गलती भी नहीं होगी, फिर भी तुम भी लाइफ टाइम गिल्ट में रहोगे क्योंकि तुमने तो सिर्फ एक सेंटेंस पास किया, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस उसमें 100 लोगों से जब सेम बात सुनो ना, मैंने तो एक ही बार बोला था पर 100 लोगों ने भी तो एक एक बार बोला था, तो हो गया ना एक से एक बार. तो वही बात होता है. वैसे बाहर की वॉइस ना ज्यादा होती है. हम लोग अपनी वॉइस को दबा ही देते हैं कितना भी करें. नहीं आती थी, स्ट्रेंथ नहीं आती. इवन आई वाज सेइंग कि सुसाइड को भी काफी ऐसा बोला जाता है कि किसी पर्सन ने सुसाइड किया एंड देन कि वो भी वीक है बहुत, मतलब जो सुसाइड Exactly. करते हैं वो वीक होते हैं, या कोई डिप्रेशन में है तो वो बंदा वीक है. वो मतलब हमारी इतनी कंडीशन ऐसे कर दी गई है दैट हर चीज हम कुछ भी करो, प्रैक्टिकल मत- वे से ही देख रहे होते हैं. हम भूल जाते हैं एट दैन वी आर ह्यूमंस, फीलिंग्स हैं एंड मेजरली सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं. वी कांट कमेंट कि वो वीक है इसलिए ही उसने कुछ किया है. So That is true. Look, just keep your heart Clean. before anything. Like, what do you क्योंकि want? आपके हार्ट में इमोशंस होते हैं, आपके दिमाग में इमोशंस नहीं होते. आप प्रैक्टिकली लाइफ जीना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस. बट वो प्रैक्टिकल लाइफ ना एक लिमिट तक ही होती है क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है. आपको इमोशनली देखना ही पड़ेगा, आपको रोना ही पड़ेगा, आपको गुस्सा करना ही पड़ेगा. that's true. दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि आपको एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. और दिस इज ऑल्सो वेरी बिटर पिल, बट द थिंग इज आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही खुद ही लड़नी. करनी. Because you are actually. यू विल गेट आउटर Yeah. हेल्प, पर तुम्हें पता नहीं है किस टाइम तक कि हाँ आज हेल्प कर दी उस इंसान ने, कल वो तुमसे चिढ़ गया. You can't expect. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी फॉरएवर विद यू. आपको अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी. What do you think healing journey का कोई टाइम पीरियड हो सकता है, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है you should, जैसे डायबिटीज नहीं होती लोगों को, you हाँ. keep checking, you don't eat regularly ना, फिर Yeah. आप वो शुगर फ्री पे आ जाते हो तो आप आ जाते हो. Yeah. You need to check that. Yeah, it's a great example. But one thing I learned about healing as a word while I was healing was कि ना healing with time नहीं होती. एक पहले होता था, मैं ऐसा बिलीव करती थी that with time you heal, कि यार टाइम पास होता Time, जाता है सब ना सही कर देता तो है. सब सही हो हाँ. जाता है. बट देन आई रियलाइज नो, No. वो वहीं का वहीं रहेगा if you are not volunteer to heal it, if you are not volunteer to talk about it. And That is that's why I force people to talk about it. ये मेरी बहुत गंदी आदत निकल है जाए. that I poke people कि no, sit with me, I'm here, मैं 1 घंटा बैठूंगी तुम्हारे साथ, बट जस्ट टॉक अबाउट इट. बिकॉज एक इमेज मुझे मेरी साइकोलॉजिस्ट ने दिखाई थी कि ये गोला आपके दुख का है, आपके
बैड फीलिंग्स का है, तो ये गोला इतना ही रहता है जब तक यू डोंट ट्राई टू ट्रीट इट। बस वक्त के साथ क्या होता है, ये एक जार में रखा है तो वो जार बड़ा होता जाता है, बट फिर ये गोला भी तो एक्सपीरियंसेस के साथ बड़ा हो रहा है, तो यू हैव टू रिड्यूस इट टू। So you have to put your mind consciously and put your efforts consciously। उसके लिए 3 steps होती हैं जो मैंने एनालाइज की थी, कि पहले you know the problem। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डिड दैट हैपन टू यू, व्हाई यू आर हैविंग दिस, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्क्ड अभी भी, why do you have depression? And the thing is, I don't know. This is a very general thing. I cannot also I have it because that's a genetic problem. Depression can also come genetically. And that's why the thing is very important. Why is healing important? Because you don't want to pass on it to your next generation. That is very important. I really I love and adore the kids I don't even have. I'm like, the next generation I'm going to have, I have to heal for them. I always had this motivation with me, my kids won't go through what I went through. That is the most top most mind में सब प्रायोरिटी रहती है कि भाई when you know about it you can help them, they have to go through their journey alone, no doubt, but at least I won't be the stigma kind of mom वैसा। So you know the reason, then try to heal from it। कि for healing you have to put your mind कि yes I'm healing। It's not कि टाइम के साथ होता है, टाइम के साथ होता है, नहीं। I'm healing, I'm getting up early in the morning, I'm meditating, I'm सोने से पहले I'm meditating, I'm trying to dance, I'm trying to go through all those things that I have forgotten धीरे धीरे। I didn't force myself। 2 साल से पोइट्री नहीं लिखी मैंने, फोर्स नहीं किया, क्योंकि हॉबीज जो है वो दिल से निकलती हैं, और आप अपने दिल को ही फोर्स कर रहे हो, बेचारा पहले से ही धज्जी उड़ी हुई है उसकी। So don't force yourself, but try to do those things little by little, again and again। Go on walks, slow walks। अकेले नहीं जाया जा रहा है, किसी का हाथ पकड़ के निकलो। वो मैं हाथ पकड़ के घुमाने लेके जाती थी मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं वॉक पे जाना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। शी वाज लाइक ब्रीथ आउट है, तो फिर वो मुझे जबरदस्ती लेके जाती। तो ऐसे हीलिंग होती है। दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम वाली हीलिंग की बात कर रही हूँ। नॉर्मली हीलिंग में भी वैसे हो जाती होगी, बट व्हेन यू आर इन अ डिसऑर्डर, यू आर इन अ डिसऑर्डर। एंड तीसरी चीज, आप बस कोशिश करो वो वर्स ना हो। आप जितनी स्ट्रेंथ रख सको उतना रखो, एंड टॉक अबाउट इट। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पब्लिकली टॉक अबाउट इट, बट have your circle you talk to। You have to have a circle। If you're pretending, I don't like that। I don't like people who pretend। मेरा मन करता है उसको 2 थप्पड़ मार के बोलूं, stop pretending in front of me and talk to me, because that won't help। That won't help you, and that would disguise 2 people all कि हाँ भाई pretending is the strength। No, pretending is not the strength। Strength is about being vocal about it। Strength is in giving up। Strength is in giving up sometimes, giving up to rise again। कोई सोता क्यों है? ताकि वो दोबारा एनर्जी के साथ उठ सके। हर चिड़िया नीचे बैठती है ताकि वो फिर उठ सके। तो फिर why can't you give up and then rise again? वैसे फीनिक्स सब करते हैं, बट द फीनिक्स हैज टू राइज व्हेन वो कहीं बैठेगा तभी तो राइज करेगा। किसी लो पे तो इंसान पहुंचेगा। इंसान को ये बात समझनी पड़ेगी, उसके लोज आएंगे और उसके लोज से उसके हाइज आएंगे। That is a graph, like हाँ, वो ग्राफ होता है। yeah। और मेरी बहुत जिद्दी सी आदत है, मैं हार मानती हूँ पर मैं गिव अप नहीं कर सकती। परमानेंटली गिव अप करना तो कोई चॉइस है ही नहीं। एक दिन हार मान ली, दूसरे दिन फिर उड़ोगे आप। ऐसे ही करते हैं। Just stop pretending। That's easier for you। फर्स्ट स्टेप टू एवरीथिंग इज आपको चीजें एक्सेप्ट करनी है कि दैट इट इज व्हाट इट इज। चीजें सॉल्यूशन भी है, आई कैन गो देयर, बट एक बार आपको मन में एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि acceptance is a very big, this is a very difficult step कि you accept first of all that I'm accepting that something's wrong with me। I'm accepting that I've lost so many things, because in this process I lost so many things। My all my friends are in good packages and good companies, MNCs, working, yes, everything went away, everything which I was capable of went away। So I have 2 options। Either I can just rant about that कि यार भाई I was capable of this or capable of that, आज अच्छा कमा रही होती है, वो आता है कभी कभी थॉट आता है। पर तो दूसरी थिंग है कि वो वक्त निकल गया, अब मैं दूसरा इंसान हूँ।
I've evolved into something new. I have to find new passions. I have to find a new life. And ये सिर्फ मुझे नहीं एक्सेप्ट करना, मेरी सराउंडिंग को भी एक्सेप्ट Accept करना करना जरूरी जो ज्यादा मुश्किल है, वो क्योंकि तो- मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगी, मेरी सराउंडिंग ये एक्सेप्ट उनको नहीं कर पाएगी. समझाना- You know, you were the academically intelligent student. We cannot accept anything else. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मुश्किल. तो वो आपको भी क्वेश्चन करने को वापस वो कर देता है. It is hard. It is hard. The journey is very hard. I'm really sorry. The fact is, the journey is hard. जर्नी इज वेरी हार्ड. एंड एक्चुअली पता है ये चीज़ बहुत आई गेस सबने एक्सपीरियंस किया होगा. हीलिंग जर्नी अगर हम बात करें ना कि इफ यू हैव एक्सपीरियंस सच, कोई ऐसा दिन है जो बहुत ही बुरा गया हो, इफ लाइक किसी के माइंड में ना कोई 10 साल पुरानी बात हो, यू विल इंस्टेंटली नो यार अब इसको होता है अभी की बात है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड अभी. Yeah, आंखें बंद yeah, करो, यू नो yeah, अरे कल की yeah, बात है. yeah. टाइम कितना पास हो गया एंड यू स्टिल हैवंट हील्ड अच्छे से. Yeah, this exactly happened. 3 साल पहले की बात पे आई रिमेम्बर उस दिन, जिस दिन मैं रोई थी उस थेरेपी सेशन में, 3 साल पहले की पहले। बात पे मैं ऐसे रो रही थी अभी की- जैसे वो आज आज की, हुई हो. हाँ, I और मैं got that. आज ही रोई हूँ, क्योंकि मैं उस दिन रोई नहीं थी. हाँ. कहा मैं उस दिन Yeah, रोई ही I can नहीं, understand. मैं तो आज ही रो रही हूँ इस बात पे. एंड समवन लेट मी क्राई. I The got thing is, that. please let me cry if I'm crying. And no, if someone else is also crying, let Let that them person cry. cry. Crying is not bad. No, not उससे weakness, पूछो. first of all. अब प्लेड लाइक दिस, लाइक भगवान प्लीज मुझे रोने की हिम्मत दे दो, प्लीज मुझे रोना है, Crying is प्लीज actually मुझे more strong. रोना है. हाँ. क्योंकि मैं रो ही नहीं पाती थी, अंदर के अंदर ही रह जाता था सब सारे. लाइक नहीं, बस मुझे रोना है. ना फाइनली स्टार्टेड क्राइंग अगेन एंड आई एम थैंकफुल दैट आई कैन क्राई अगेन. Yeah. पीपल डोंट गेट इट कि हाँ रोना कितना फॉर्चुनेट थिंग है, कि भाई तुम रो पा रहे हो, This तुम actually मुस्कुरा should पा ask to रहे हो. men. They cannot cry. मतलब I feel pity, I feel very bad for them, and I really go and I really literally hug people and I'm like, just cry, just let it go, okay, just cry, please, just cry. I'm ready to cry with you. Just cry, just stop that stigma for once. अकेले कमरे में रो लेते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा, बस just cry, because I feel very bad for man in that case. like I have friends, उनसे मेरी बात होती है ना, तो they ऐसे like girls, हम लोग अगर किसी और के सामने भी cry lonely, like अकेले होते हैं तो निकल जाता है. उनका वो भी नहीं निकलता, क्योंकि उनको बचपन से वैसे ही कंडीशन कर दिया I जाता है. feel very bad. That is worst. मैंने बहुत कोशिश की बहुत लड़कों को रुलाने की. भाई ये मेरा ना गोल है एक लाइफ का, कि मैं लड़कों को रुला के उनका लाइट फील करवा के उनका दुख बांट सकूं. मैं उनके साथ रोने को तैयार हूँ, बट वो रो ही नहीं पाते. इवन इफ दे क्राई, वो मतलब अगर किसी के कुछ होता है ना सेंसिटिव काइंड ऑफ हाँ. मेंस, दे ट्राई टू, इमोशंस उनके आ रहे होंगे, वो खुद को रोक लेंगे कि नो आई एम बॉय, आई कांट क्राई, मैं रो ही नहीं I need to सकता. be strong. हाँ. ऐसा वाला. And I'm really proud of boys who cry. I have friends like that, and I'm really proud of those people that they There's nothing have. wrong with हाँ, crying. It's yeah. a normal, natural human. It's like we have to re-nurture people now as friends in group, because what we have been grown up as, what we have been taught is very wrong. तो अब हमें एक दूसरे का कुछ करना है. माँ बाप या कुछ गार्जियन बन के ये सब चीजें सिखानी है. एक्चुअली वो जो एज होती है ना हमारी, जो क्या बोलते हैं प्रिमिटिव एज, मतलब वो वाले इयर्स वो होते हैं कि उसमें बन गया है. हाँ. आपकी जो पूरी लाइफ है ना, वो उन 4-5 सालों के ऊपर ही बेस्ड है. उसको चेंज करना इज वहाँ मैं भी बन गई थी. आई यूज टू हेट रिलेशनशिप, आई यूज टू हेट क्राइंग, आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. वहाँ मैं ऐसा बन गई थी जो कि मैं हूँ ही नहीं. आई एम अ गुड पर्सन, ये मुझे पता है. बचपन से मुझे बस ये एक चीज थी, काइंड पर्सन बनना है, काइंड पर्सन बनना है, तो वो मैं बनी. उसके अलावा आई यूज टू हेट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग, नॉट क्राइंग, और वो सब बकवास भरी थी मेरे अंदर. फिर वो मैंने सब निकाली है धीरे धीरे. नो, यू कैन क्राई, यू डोंट, मतलब क्राइंग इज ऑल्सो स्ट्रेंथ. सो वो सारी चीजें धीरे धीरे हाँ. इट इज एक्चुअली स्ट्रेंथ. मतलब हमें रियलाइज नहीं होता हाँ, कि मतलब 1.5-2 साल आई वाज लाइक यार भाई मेरे को रोना है. मैं ऐसे हो जाती थी, मुझे रोना है, मुझे बस रोना है, मैं रो नहीं पाती थी. सो या दैट समथिंग, जस्ट फील लाइक दैट, क्राई इफ यू कैन, cry it out actually. So yeah, I guess this episode have कहीं ना कहीं healed
और मे बी आपको कहीं ना कहीं अपने पैटर्न्स को नोटिस करना बताया होगा कि आप अपने पैटर्न्स को नोटिस, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू कम एंड सेव यू. Yeah, yeah. You are there for I yourself. cannot heal you. No one can heal you. But there are helps. Please do take help. जैसी भी थेरेपी में जाओ. It's not about counseling session. एक तो ये भी चीज़ है, लोगों को ये नहीं पता. There are variety of therapies and there are free therapies also. They are free available. therapies. Even I took them. हाँ, Free तो kind of. ट्रायल्स लो. काउंसलिंग नहीं जा रही है तो वाटर थेरेपी पे जाओ, म्यूजिक थेरेपी पे जाओ, जिस थेरेपी पे जाना उस थेरेपी पे जाओ. तो तुम बस ये जानो कि तुम्हें गिव अप करना ही नहीं है अपने ऊपर. बस Yeah. have that willingness to be you. So yeah, that was a nice end statement. Thank you for And coming. thank you for coming and Thank you for having sharing your me. story. I always dreamt of this, पता है, that someone just let me speak, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, कोई मुझे बोलने नहीं देता. No, but we need. Thank you guys if you're listening it till now. Thank you to Thank you you so too. much, Thank guys. you so much. And yeah, we'll see you in the next episode. Bye bye.